On behalf of Manipur Public School, I would like to extend a warm welcome to respected Group Commander Brigadier Sanjeev Ranjan Sharma, SMDSM, and I would also like to express a warm welcome to Colonel W.J.K. Singh, CO65 Manipur Girls Battalion, and also our respected Principal Sir R.K. Mocha, Manipur Public School, for taking time to be with us today. Now, our esteemed institute will be presenting our humble gifts to the special invitees. Okay, please give a round of applause. Once again. Okay, please give a round of applause. I would like to request our principal, our respected principal, Sir R.K. Mocha, to present a few words. Respected Sir Brigadier Sanjeev Ranjan Sharma, Group Commander, NCC Group Headquarters Park, Sir Colonel W.J.K. Singh, CO65 Manipur Girls Battalion. Sir, first of all, I welcome you to Manipur Public School. I would like to show my hearty gratitude to you for coming to Manipur, for your visit to Manipur and especially to visit Manipur Public School. Yes, sir, it's a well-known fact that NCC, this organization, plays a very important role in bringing up our youngsters to make perfect citizen of India. We have been taking this opportunity, this privilege, since long time, years ago. We will take this privilege as long as it is possible. Thank you, sir. Once again, I don't have much to say to you, but thank you, sir, very much for coming to Manipur Public School. And sir, with this, I would like to give you a present as to be your memory to reach Manipur to Manipur Public School. Sir, these animals, you might have some idea. This is a symbol of Manipur. This particular animal is found only in Manipur. Sangai Festival also there. Thank you, sir. Keep it as memory. Okay. For your visit. Yes, thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable speech. Now, I would like to request our respected Group Commander, Brigadier S.N. Sharma, for a speech. W.J.K. Singh, CO65 Manipur, respected Principal Sir, DNO and CDOs of both the units, the PI staff of 65 and 1 year, and young, smart, confident, cheerful students and children and the NCC cadets of Manipur Public School. Very good morning to you all. At the outset, I wish to
thank Principal Sir and each one of you for being so kind and warm during my visit here. And so thank you very much for this, Sendai, as a mentor. I remember it throughout my life. Now, as I was briefed by the Principal Sir, is that this Manipur Public School is the first of its kind in Manipur, which was established way back in 70. ये बच्चे अगर रिलैक्स रहो, आप समझो कि मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ, मैं देख रहा हूँ काफी टेंस हो, है ना? चलो, जैसे आप टीवी देखते हो, खाते हो अपने माँ पिताजी के साथ, कैसे आप हो? वैसे बैठो, राइट? So don't, because if you are relaxed, तभी आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आप ऐसे एकदम सावधान बैठोगे तो आप समझोगे नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. आप समझ लो? Treat it as a family member, totally relaxed, then only you understand. Now, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ मणिपुर में थोड़ा सिचुएशन खराब होने की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन, जो पिछले साल का जो ट्रेनिंग था 2023-24 का ट्रेनिंग, वो हम नहीं कर पाए. बिकॉज आपको पता है कि जितने मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारा एनसीसी है और कई डिस्ट्रिक्ट में हमारी पहुंच, जो वैली में तो हम पहुंच सकते थे यानी हमारे स्टाफ, लेकिन जो बाकी स्कूल हैं चुराचांदपुर, कामकोपी, सेनापति, उखरूल, वहाँ थोड़ा सा अभी भी बफर जोन के थ्रू पास होना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत है. बट फिर भी यह डिसीजन लिया गया एट द लेवल ऑफ डीजी एनसीसी दिल्ली में जो हमारा हेडक्वार्टर है कि 15 अप्रैल से, आज ऑलरेडी 10 मई हो गया, 15 अप्रैल से हम पूरे मणिपुर में एनसीसी का ट्रेनिंग शुरू करेंगे, राइट? और 15 जुलाई तक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग खत्म करेंगे. यानी 3 महीने में हमारा एम है, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months वी विल फिनिश द एनसीसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. And we have 102, schools and colleges which are affiliated with us. Okay. और 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में कैंप और सर्टिफिकेट एग्जाम होगा. और 15 अगस्त से 15 सितंबर एक महीना स्पेयर रखा जाएगा, ताकि कि अगर कोई किसी वजह से कोई कर्फ्यू, कोई बंद इत्यादि हो, जैसे आपने देखा कि हेल स्टॉर्म आया था 2 दिन, तो 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद हो गया. इस तरह के अगर सिचुएशन आते हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर एक महीना रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा. एंड वी विल कमेंस आवर ट्रेनिंग ऑफ 24-25 फ्रॉम 15 सितंबर ऑनवर्ड्स, राइट? सो ब्रॉडली आप प्रोग्राम समझ गए, शेड्यूल, राइट? और आप सभी को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कोई बी वाला तो नहीं है इधर. All are eligible for A only, right? So A सर्टिफिकेट के लिए कैंप का, बिकॉज कैंप कंडक्ट अब इतने बच्चों का पहले ट्रेनिंग इतने कम टाइम में, फिर सभी के लिए कैंप कराना, फिर सभी के लिए एग्जाम कराना. और पहले अर्लियर एवरीथिंग यूज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन इम्फाल, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हों, सभी कुछ हमारा कैंप भी इम्फाल में होता था और एग्जाम भी इम्फाल में होता था, राइट? और इम्फाल में एक ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर है, हो सकता है आप में से कुछ लोग देखे होंगे या कुछ का घर उधर होगा. कौन सी वो कॉलोनी है, हाँ, मैम बोल रही है उस जगह. तो अभी क्या है कि वो रिलीफ कैंप बन चुका है. रिलीफ कैंप वहाँ डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो हमारे पास कैंप साइट अवेलेबल नहीं है, राइट? इसीलिए ए सर्टिफिकेट के लिए जो हम चाहेंगे कि आपका कैंप हो, तो वो कैंप में एक अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में नहीं हो पाता है. बट against our wishes and because of many constraints, right, there will be no camp for A certificate. Camp will be only for B and C, right? और आप लोग के लिए बिना कैंप के ही, कैंप के लिए वेबर दिया गया है ऑलरेडी बाय द DGNCC, और सीधा सर्टिफिकेट एग्जाम है. तो आई रिक्वेस्ट द ANO, CTO, द PI स्टाफ जो मेरे हैं, कि कृपया जो A सर्टिफिकेट एग्जाम है उसके सिलेबस पे थोड़ा ज्यादा फोकस दिया जाए, ताकि आप सभी बच्चे जो ए सर्टिफिकेट एग्जाम फेस करते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको पेपर लिख पाए और एटलीस्ट आप उसको पास कर सकें. और अच्छा मार्क्स ला सको तो और अच्छी बात है, बट एवरीवन मस्ट बी एबल टू क्लियर योर ए सर्टिफिकेट एग्जाम जो आप देंगे, जो
सेकेंड ईयर के बच्चे, राइट। जस्ट आपके लिए लागू नहीं है, बट जो आप में से फिर बी और सी के लिए अगले साल इस तरह होंगे, राइट, या आज जस्ट एक इन्फो पॉइंट है आपके लिए कि इस साल के लिए बी और सी के लिए भी सिर्फ डे कैंप होगा। पहले क्या होता था, कैंप में डे 1 को लोग आए, 10 दिन किए और 10th का 11th डे फिर कैंप से बाहर जाते थे। अभी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन इट विल बी डे कैंप ओनली। सुबह बच्चे आएंगे और शाम को जाएंगे, जो बी और सी सर्टिफिकेट था, ठीक है। नाउ जो हमारी ओवरऑल एनसीसी का जो फोकस है, राइट, वो एक इवन इंक्लूडिंग जो स्कूल, किसी भी स्कूल कॉलेज का जो एक फोकस रहता है कि बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देना। जो आपके पेरेंट्स, योर फादर मदर, आपके दादा दादी, नाना नानी, तो आपके ग्रोथ पे देते हैं ध्यान, है ना। आपको कुछ वैल्यूज, कुछ आपको और टीचिंग्स देते हैं, राइट, हेल्थ हाइजीन रिलेटेड, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम स्कूल की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपने देखा स्कूल कॉलेज में सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमेशा उस सब्जेक्ट प्रॉपर के अलावा भी कुछ ऐसे रहता है जो कि एक स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को आना चाहिए। तो एनसीसी का भी ये एम है कि एनसीसी के जरिए हम देश के बच्चों को, चाहे वो स्कूल में हो या वो कॉलेज में हो, जो हमारे एनसीसी के स्ट्रेंथ में हैं, हम उनको एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी ट्रेनिंग दे सके जिससे उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और एक ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ, जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग शामिल है, जिसके तहत ड्रिल का हमारा ट्रेनिंग होता है, पीटी और गेम्स का ट्रेनिंग होता है, राइट, फिर एडवेंचर ट्रेनिंग है, फिर आपका वेपन ट्रेनिंग है, राइट, एंड प्लस जो एक सिलेबस है, जो क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग होती है, राइट, जिसको हम जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन पे हो, लीडरशिप पे हो, हाइजीन सैनिटेशन पे हो इत्यादि, राइट। अल्टीमेटली दी एंड प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं कि एक बच्चा और कॉन्फिडेंट हो, वो फिट हो, राइट, और वो कंधे से कंधे मिला के दूसरे से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो शामिल हो सके, राइट। अभी कोई एनसीसी का मोटो बता सकता है आप में से? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? वेरी गुड, से एवरीवन, व्हाट इज द मोटो? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके, लेट्स ऑल क्लैप फॉर दीस चिल्ड्रन। गुड गुड, क्लैप और थोड़ा जोर से करो। Okay, I'm very happy with you all that everyone knows the NCC motto, right? Now, कोई भी यूनिटी से क्या समझते हैं आप? Anyone? What do you understand by unity? Okay, एकता है कि नहीं? एक यूनिटी, राइट। एक यूनिटी हर जगह, एक फैमिली के अंदर यूनिटी होता है, स्कूल के अंदर यूनिटी है कि नहीं? एक सोसाइटी में यूनिटी होती है, राइट। सो एकता, ऑल यूनाइटेड, जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्शन है, वो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। एंड डिसिप्लिन, राइट, अनुशासन। डिसिप्लिन जैसे स्कूल में क्या होता है, आप कितने बजे आते हो बच्चे स्कूल में? व्हाट टाइम यू कम? 9 o'clock. What time? 8 o'clock. 8 o'clock you come. What time you leave? 2 o'clock. So there is, for example, timing. So all the children come at a particular time and leave at a particular time, right? You all wear, I see children today you are wearing NCC dress. Everyone wears one type of dress, right? Then there is a class of 40 minutes. Then there is a break of 10 minutes. So they are all part of discipline, right? Same in the family also. You get up at a time. You brush your teeth. You get ready. You sleep at a particular time. You understand? So this is all part of discipline. So discipline, one is self-discipline, right? कि कोई नहीं भी बोल रहा है फिर भी आप काम वो कर रहे हो जो सही है। एक होता है इन्फोर्स डिसिप्लिन। देखा किसी टीचर को, सर को देख लिया यहाँ, आप आवाज कर रहे हो, उससे नहीं चुप हो। आप समझ रहे हो? एक है कि चाहे कोई है नहीं है, आई एम नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, बट आई डू व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, राइट? सो थ्रू द एनसीसी वी आर वांटिंग टू इन्फोर्स द टू वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और आपने सुना होगा, पढ़ाया भी होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, कई अखबार में, टीवी पे भी देखते हो, वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज। सुना है वैल्यू, मूल्य,
राइट। वैल्यू सिस्टम तो क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के एक इंडिविजुअल वैल्यू होते हैं, एक परिवार के अंदर वैल्यू होता है, सोसाइटी का वैल्यू है, कंट्री लेवल पे वैल्यू, एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू होता है, कंट्री लेवल पे वैल्यू है। वैल्यू जिसमें कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप समझ रहे हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, राइट, आपके यूनिटी इज अ वैल्यू, डिसिप्लिन इज अ वैल्यू। हमारे जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का वैल्यू सेक्रीफाइस। आप हम जब व्हेन वी आर ऑन दी बॉर्डर्स, देन सेक्रीफाइस, कि हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं देश के खातिर। ये क्या हुआ, एक वैल्यू हुआ। आप समझ रहे हो, ब्रेवरी इज अ वैल्यू। सो थ्रू आवर एनसीसी ट्रेनिंग वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्पार्ट द करेक्ट वैल्यूज इन ईच वन ऑफ यू, एंड जितने अच्छे वैल्यूज हमारे अंदर होंगे हम उतने अच्छे इंडिविजुअल बनेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? ओके, अभी आप जूनियर डिवीजन में हैं, subsequently depending on which school or college. Good morning. On behalf of Manipur Public School Koirengdei, I extend my heartfelt gratitude to each and everyone for gracing this function with your presence. Today has been an occasion filled with valor, discipline and patriotism, and it's all thanks to the dedication and efforts of numerous individuals. Firstly, I'd like to express our sincere appreciation to respected Brigadier Sir S.R. Sarma, SM VSM Group Commander, Imphal Group, for taking out time from his busy schedule to honor us with his presence. Sir, your words of encouragement and wisdom have inspired towards making this event a memorable one. Secondly, I'd like to special thanks to our respected Sir Joy Kumar Singh, Colonel W. Joy Kumar Singh, Commanding Officer, 65 Manipur Girls Battalion, for gracing this function. My special thanks to our respected Sir R.K. Kimocha, Principal Manipur Public School, for gracing the function and guiding us towards making this event a memorable one. Last but not the least, I'd like to extend my sincere thanks to our ANO, city, PI staff, our school staff, my dear cadets, and everyone else who has contributed in any way towards making this event a memorable one. Dear cadets, let us carry forward the spirit of discipline, unity and service that the NCC stands for, and let us continue to strive towards building a better and bright future for our nation. Thank you. Now let us all stand up for NCC song. भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे
हम सब भारतीय हैं